Hello students, today we will talk about the topic capacitors. What are capacitor, what are importance of capacitors and how we use capacitor in our daily life. But before starting our topic, we will see summary about electrostatic of conductor. We have already discussed all the points earlier. So let's start our topic. First, inside a conductor, electrostatic field is zero. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. ये हम कैसे प्रूव करेंगे? इफ वी पुट अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस इज द डायरेक्शन. नाउ इन दिस कंडक्टर net charge is equal to zero. Positive and negative charges make this conductor neutral, but when we place this conductor in external field, what will happen? This is positive sign, so negative charge will induce on this end of conductor and positive charge induced on the other side of conductor. Now an electric field is also induced due to this exchange of induced charges here and direction of this induced field in this direction. So here we can see external field direction towards right and E induced. Electric field जो induce हुआ due to this induced charge on this side of conductor, this direction is opposite to external field. एंड इंड्यूस चार्जेस कब तक एक्सचेंज होंगे? जब तक आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एक्सटर्नल नहीं हो जाता. एंड इट बिकम्स ट्रू व्हेन दीज टूज आर इक्वल. ई एक्सटर्नल एंड ई इंड्यूस इक्वल हो जाते हैं एंड डायरेक्शन आर अपोजिट. सो दिस कैंसिल आउट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू zero. So this is the first point. Inside a conductor electric field is zero. It is now clear to you कि what happened when we put this conductor inside electric field. E induced also there and its direction is opposite to E external. Now come to second point. At the surface of charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. We have discussed this point. If this is a charged body, now electric field at every point must be normal to the surface of conductor. अगर ये normal नहीं होता, then charge will start move, and that is the not condition of electrostatic. So this is point second. Now third point, the interior of a conductor can have no excess charge in the static conductor. If we start to put charge on a conductor or we give charge to the conductor, what will happen? All the charge will come on the surface of conductor due to repulsion. जब आप चार्ज देना शुरू करते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन की वजह से क्या होगा? पूरा चार्ज आपका सरफेस पे अपीयर हो जाता है. अब सरफेस के बाहर क्या है? एयर. एयर क्या है? इंसुलेटर. तो ये चार्ज कहां पर स्टे करेगा, कहां रिजाइड करेगा? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर. फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface. ये प्रॉपर्टी भी आपने रीड की थी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है सरफेस पर, वही वैल्यू कहाँ होती है? इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. मतलब जितनी वैल्यू सरफेस पे होगी, दैट वैल्यू इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. सो V इनसाइड एंड V सरफेस वैल्यू बोथ आर इक्वल. और ये वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द वॉल्यूम, बिकॉज बाय द रिलेशन E is equal to minus dV by dr. Inside the surface of conductor E is equal to 0. Inside the conductor electric field 0 है. If this E equal to 0, then V should be a constant. तो V क्या होगा? एक constant quantity होगी. So this is the point 4. Now come to point 5. Electric field at the surface of a charged conductor E is equal to sigma by epsilon naught n cap. ये भी पॉइंट हम कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है?
जब हम सरफेस पे बात करते हैं दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R square. It is the value on the surface of conductor. If we put the value of Q in the form of sigma, then E is proportional to sigma. Epsilon is constant quantity. So electric field at the surface of conductor is proportional to surface charge density. Sigma is surface charge density. 6th point, electrostatic shielding. What do you mean by shielding? Protection layer. So electrostatic shielding, जब एक हम कैविटी की बात करते हैं, कैविटी इज अ होलो कंडक्टर या होलो शेल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो मतलब कैविटी के अंदर एक्सटर्नल फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसलिए आपको एडवाइस भी किया जाता है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म यू आर सेफ इनसाइड ए कार, यू हैव टू स्टे देयर बिकॉज इट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जितनी भी लाइटनिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कार इज हैज अ मेटेलिक बॉडी, तो जितना भी फील्ड है वो उसके बाहर से जाएगा, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगी। सो यू आर safe inside a car during thunderstorm. So this is summary about electrostatic of conductor. Note down all the points. Now we will discuss topic capacitors. Capacitors क्या होते हैं? Why we need capacitors? उनकी जरूरत क्यों पड़ती है डेली लाइफ में? As we know कि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हीट एनर्जी की हम अगर बात करते हैं, बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है नेचर में, तो एनर्जी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। सो हीट एनर्जी आपको कहां से मिली? सन से। देन ड्यूरिंग डे टाइम सन अवेलेबल है, यू कैन एक्सट्रैक्ट हीट एनर्जी, बट एट नाइट क्या होगा? अगर आपको हीट एनर्जी की जरूरत है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? स्टोरेज। सेम अगर आप मॉर्निंग में पानी आता है तो आप कहाँ स्टोर करते हैं? टैंक में, बिकॉज 24 आवर्स वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो लाइफ में जितने भी फिनोमेन है या फिर जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनमें हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम किसको स्टोर करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस डिजाइन की गई और उसका नाम क्या है? कैपेसिटर्स। तो आप सोचते हैं कि बैटरी और सेल वो भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, बट आंसर इज नो, बिकॉज दे आर ओनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दे कांट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें क्या होगा? रिएक्शंस होती हैं, देन वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। लेकिन सेल एंड बैटरी में एक लिमिटेशन है, बिकॉज दे हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपको इंस्टेंट करंट अवेलेबल नहीं होता। तो इसको आप एग्जाम्पल से देखिए, जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन होती है, तो उस टाइम फ्लैश ऑन होने के टाइम बहुत सारे करंट की रिक्वायरमेंट है, 25 एम्पियर इन मिली सेकेंड्स। तो इतनी सारी एनर्जी आपको एक साथ कैसे मिलेगी? तो उस चीज के लिए आपको कैपेसिटर्स की नीड हुई, बिकॉज एट वन टाइम और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको बहुत सारी एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होती है, देन वी नीड दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस। सेकेंड थिंग, वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। से आपको एक बड़ा सा टैंक है और उसमें 25 लीटर की जरूरत है, तो उसके लिए आप दो ऑप्शंस चूज करिए। फर्स्ट ऑप्शन, आप टैप ऑन करेंगे, देन टैंक को फिल करना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, आप एक बकेट लीजिए, बकेट में वो पानी फिल करिए। अब आप देखिए, जब टैप से पानी आ रहा है तो 1 लीटर एट ए टाइम, लेकिन जब आपने बकेट में फिल उसको कर लिया, स्टोर कर लिया है, तो हम एट एनी इंस्टेंट क्या कर सकते हैं? कहीं भी 25 लीटर्स दे सकते हैं। लेकिन जो टैप है उसके अंदर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो इतना ही पानी आपको दे सकता है। अब मुझे यहाँ पर पानी चाहिए, तो एक आप टैप से भर के लाइए, एक बकेट से दीजिए, तो बकेट से क्या मिला आपको? इंस्टेंट। तो वो जो बकेट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कैपेसिटर्स के साथ, कि बहुत सारी एनर्जी की जब आपको रिक्वायरमेंट है एट एनी टाइम, देन वी कैन यूज सच टाइप ऑफ डिवाइसेस नोन एज कैपेसिटर्स। अब ये बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कैसे स्टोर करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आएगी?
इलेक्ट्रिक चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे कंडक्टर के अंदर स्टोर करेंगे? तो आप क्या करेंगे, एक बॉडी लीजिए, उसको फ्रिक्शन या रब करके क्या करेंगे, चार्ज इंड्यूस करेंगे। देन एक चार्ज आपने दूसरी बॉडी या कंडक्टर के अंदर डाला। कैसे डाला? इसको रब किया एंड दिस इज एट हाई पोटेंशियल, क्योंकि जब चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, पोटेंशियल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने कंडक्टर को एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज दिया, फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके आए। अब पहले वाला आपने दिया तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट जब आप सेकेंड चार्ज को लेके आएंगे, यू हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस। तो आपने वर्क किया, वर्क, अब ये जो वर्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर कि कितना वर्क डन होगा। अगर आप 2 पॉइंट चार्जेस को लेके आते हैं तो हाउ मच वर्क डन इज नीडेड टू डू दैट वर्क इफ 3 पॉइंट चार्जेस एंड इफ मल्टीपल चार्जेस। देन व्हाट हैपन कि आपने कंडक्टर के अंदर चार्ज भरना स्टार्ट कर दिए। अब चार्ज आप भर रहे हो तो क्या हो रहा है, से दिस इज कंडक्टर, आपने एक चार्ज दिया और ये कंप्लीटली चार्ज हो गया। आपने Q चार्ज इसको दिया है, दैट इज नेट चार्ज। इफ दिस Q इंक्रीजेस ऑन दिस कंडक्टर, इफ Q इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या राइज कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल भी राइज कर रहे हैं। Q इंक्रीजेस देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर क्या होगी, इसके सरफेस पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन दिस चार्जेस। और ये जो सारे चार्ज हैं ये किसके अंदर आ गए हैं, टेंशन के अंदर आ गए, क्योंकि हम कंडक्टर के अंदर इनको कंप्रेस्ड किए जा रहे हैं। एंड व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस रिपल्शन ये अपनी अपनी लोकेशंस पर सेट हो जाएंगे। कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी यहाँ पर, से v इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर। देन व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस वन, एक आपने वर्क कर दिया है और ये सारा वर्क किसमें हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑल चार्जेस आर हेयर इन कंप्रेस्ड फॉर्म, आर अंडर टेंशन एंड एट स्टेबल लोकेशंस। तो ये जो वर्ड है स्टेबल लोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कन्फिग्रेशन को बताता है। तो यहाँ पे चार्जेस कैसे अपनी लोकेशन पे या पोजीशंस पे सेट हो गए हैं। सो दिस कंडक्टर इज चार्ज्ड एंड पोसेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन वी अलाउ दिस चार्जेस टू मूव, then whole electrical potential energy is converted into kinetic energy। अब ये चार्जेस किस में आ गए हैं, मोशन में आ गए हैं, मूवमेंट में आ गए हैं। तो अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है एनर्जी की, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट कैपेसिटर्स। तो आपको कैपेसिटर समझ में आया कि कैपेसिटर होता क्या है, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Capacitors are the devices, or it is a device which is used to store electric charge in compressed form, and we receive charges or energy in fast pace, and this is known as discharge. So what are capacitors? It is a device which is used to store electric charge in compressed form, and we receive charges or energy in fast pace, और वो
कैसे हम रिसीव करेंगे? कैपेसिटर के अंदर आपने चार्ज भर दिए, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा और आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इट इज क्लियर टू यू? अब आपने एक कंडक्टर को चार्ज कर दिया है बाय पुटिंग दैम चार्ज ऑन इट, इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि आप चेक कैसे करेंगे कि ये कंडक्टर चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, इट इज चार्ज और अनचार्ज, तो उसका क्या मेथड होगा? अब आप हाथ लगा के देखेंगे नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, है ना। तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे कि आपने एक कंडक्टर को चार्ज किया, क्लियर। नाउ दिस इज एट हाई पोटेंशियल, क्योंकि जितना चार्ज आप देते जा रहे हो उतना उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। नाउ दिस कंडक्टर हैज एट हाई पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आप कैसे मेजर कर सकते हैं? हाइट से। अब मेजरमेंट कैसे होगा कि पोटेंशियल कम है या ज्यादा है? अगर आपने ग्लास के अंदर पानी भरा है तो आप उसकी हाइट से क्या बताते हैं कि कितना उसके अंदर स्टोरेज है ग्लास के अंदर पानी का। तो ऐसे ही आप हाई पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे कि कितना उसके अंदर चार्ज भर चुका है? तो पोटेंशियल गिव द मेजरमेंट हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इन दिस कंडक्टर। सो वी कनेक्ट दिस हाई पोटेंशियल विद द लो पोटेंशियल। आप एक कंडक्टिंग वायर लीजिए, कंडक्टिंग वायर को एक लो पोटेंशियल कंडक्टर से इसको कनेक्ट करिए, से अर्थ, एंड देन स्टार्ट की हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है या नहीं होता है। तो अगर ये फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं, इट मींस दिस कंडक्टर इज चार्ज, ये कंडक्टर चार्ज था। सेकेंड हम क्या करते हैं कि जो टेस्टर है वो हम लगा के देखते हैं कि वहां से चार्ज फ्लो हुआ या नहीं हुआ। दैट गिव यू इंडिकेशन कि यहाँ पर चार्ज अवेलेबल है या नहीं है। सो वी कैन चेक दिस कि दिस कंडक्टर इज चार्ज और अनचार्ज। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप किसी भी कंडक्टर को इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं। इट इज पॉसिबल और नॉट, चलो देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि एक कंडक्टर को आप चार्ज देते जा रहे हो, ठीक है, उसका पोटेंशियल भी आप इंक्रीज कर रहे हो। इफ Q इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा, V is Q upon 4 pi epsilon naught R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर आप चार्ज इंक्रीज कर रहे हो then automatically electric field also increases and its value is 4 pi epsilon naught r square at the surface of conductor। अब यहाँ पर पॉजिटिव 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 चार्जेस स्प्रेड हो गए हैं अबाउट देयर लोकेशंस। अब इस कंडक्टर का सराउंडिंग कौन है? एयर, और एयर आपको पता है इट इज अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर है तो इसका मतलब यहाँ जो एयर होगी उसके पास जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है दे आर बाउंड। इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, बिकॉज एयर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, तो यहाँ पर ये बाउंड है। ओके, अब ये अपना नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को नहीं देगा जब तक ये बाउंड स्टेट में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप क्या कर रहे हो? और चार्ज आपने दिया, से यहाँ पर आपने 1000 चार्ज यहाँ पर इस कंडक्टर को दे दिए हैं। अब आप नेक्स्ट चार्ज लेके आए, Q चार्ज, आपने एक चार्ज और दिया, अब कितने हो गए? दिस मच चार्ज। नाउ व्हाट हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज होता है इट मीन्स फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस ऑल्सो इंक्रीज। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आपने दिया, अब इसके पास इतना ज्यादा फोर्स हो गया है, और वो फोर्स कहाँ लगाएगा? ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री करने के लिए। बिकॉज अब जो एक्सर्ट होगा फोर्स वो किस लिए होगा? कि इस एयर के इलेक्ट्रॉन को वो बाहर पुल आउट कर पाए। तो जैसे ही यहाँ पर इंसुलेशन ब्रेक डाउन हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और फ्री होकर दिस पॉजिटिव चार्ज बिकम न्यूट्रलाइज। क्लियर? तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गए।
अब फिर से देखिए, यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया था 1, तो कितना हो गया था दिस मच, बट इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक डाउन, तो एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ लीक हो गया, एयर में लीक हो गया। अब फिर से माइनस करोगे तो हाउ मच, अगेन 1000। इफ चार्ज डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज होल्ड करेगा। सेम अगर आप बकेट से कंपेयर करते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करने की 25 लीटर, तो आप उसमें 1 लीटर और पानी ऐड करोगे, देन व्हाट हैपन, स्पिल्स आउट और फॉल आउट। तो ऐसे ही आप चार्ज को भी कर सकते हैं कि जैसे आप कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज पुट कर रहे हो, वो वैसे ही क्या होगा, एयर में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किस प्रोसेस से होता है कि जितना चार्ज आप ज्यादा दे रहे हो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इंक्रीज होने से फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। इतना ज्यादा फोर्स इंक्रीज हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन ऑफ एयर को फ्री कर दिया और वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। अब एक बार में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रलाइज होगा, बट जल्दी से ये क्या होना शुरू हो जाएगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रलाइज। इट मीन्स अगर कैपेसिटी 1000 है तो 1000 चार्ज ही स्टोर होंगे, आप एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब ये इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगा एयर का, तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, and that value is 3 into 10 raised to power 6 volt per meter. That much electric field value. It means electric field की value जब इतनी हो जाएगी, how this is 3 into 10 raised to power 6 volt per meter, इस electric field value पे insulation of air break down and air become ionized, और जो air है वो ionized हो जाएगी। So this is defined as the value of electric field at which insulation of medium breakdown and charge starts flowing, or we can say insulation of air breakdown and air become ionized. So write about dielectric strength of air, how much value is need to break down the insulation of air, that is 3 into 10 to the power 6 volt per meter। ये वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिस पर इंसुलेशन ऑफ मीडियम ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग और लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक डाउन एंड एयर बिकम आयनाइज्ड। अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, एयर के अलावा अगर हम वैक्यूम में प्लेस करते हैं किसी भी कंडक्टर को और देन हम उसको चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, तो आप उसको कितना भी चार्ज दे सकते हो, बिकॉज वैक्यूम के अंदर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ज दे सकते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, बट वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसको हम इनफाइनाइट चार्ज नहीं कर सकते, दैट इज द लिमिटेशन। एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसको सिर्फ पर्टिकुलर कैपेसिटी से ही उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। सो दैट इज द अबाउट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, कैन वी चार्ज ए कंडक्टर टू इनफाइनाइट वैल्यू, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, and that word capacitance shows how much capacity of a conductor to store charge. So this is it is
measure or show ability of a conductor to hold electric charge. This capacitance shows the ability of a conductor to hold electric charge. एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है? So we have discussed that if we give charge to a conductor, then its potential also increases. So this Q is directly proportional to V. Clear? कि जितना चार्ज आप दे रहे हो आप उतना ही उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या कर रहे हो? राइज कर रहे हो. दैट V shows rise in potential. So that is potential difference, not electric potential, because difference is there. Because पहले क्या है? लो पोटेंशियल है कंडक्टर का. जैसे आप उसके अंदर चार्ज डालते जा रहे हो उसका पोटेंशियल भी राइज हो रहा है. दैट शोज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ मैथमेटिकली we say if there is a proportional sign, then अगर आप इसको इक्वल करते हैं कांस्टेंट आएगा and that constant is CV and that C is capacitance of a conductor and further C is equal to Q by V. So we show this capacitance by capital C. If we want to define this capacitance of a conductor, for that we put this V is equal to 1 volt. We can define C in terms of Q as well as in terms of V, but here we put V is equal to 1 volt. Then this C is equal to Q. Okay, न्यूमरेटर का इफेक्ट ज्यादा होगा इसलिए हमने this denominator को 1 volt put किया and here this C is equal to Q. Now we can define this capacitance of a conductor is numerically equal to that charge which requires to increase potential of conductor by 1 volt. कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट. कि आपको कितना चार्ज चाहिए सो दैट कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो जाए. तो वो चार्ज कितना हो सकता है? 3 कूलम भी हो सकता है, 4 कूलम भी हो सकता है. कब तक आपको चार्ज देना है? जब तक पोटेंशियल 1 वोल्ट नहीं हो जाता. तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू वेरिएबल होगी बिकॉज हेयर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन factors. First, size and shape of conductor. Second thing, medium. आपका कैपेसिटेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि जो आपने कंडक्टर लिया उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो चार्ज आप देंगे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी. एंड सेकेंड फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स दैट इज मीडियम. कि आपने मीडियम क्या रखा है? एयर है, वैक्यूम है और एनी अदर मीडियम. सो दिस इज अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर. नाउ वी सी द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस. हमने डिनोट किया कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से एंड यूनिट फॉर दिस इज एज यू नो दिस इज C is equal to Q upon V. तो कूलम पर वोल्ट हम इसको जनरली नहीं लिखते हैं इसका यूनिट. हम इसका यूनिट फैराड लिखते हैं. फैराडे जो साइंटिस्ट है उन्हीं की टर्म्स में हमने इसको यूनिट नहीं दिया है, दैट इज फैराड.
and that is denoted by capital F. ये आप इसका यूनिट डिनोट करेंगे. सेकेंड थिंग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी होगी. Q scalar quantity, V also scalar quantity, so capacitance is also scalar quantity. Now practical units जो हम लैब में यूज करते हैं mostly times, because farad is a very big unit of capacitance, generally हम उसको यूज नहीं करते. तो जो प्रैक्टिकली या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज होती हैं वो हम यूज करते हैं माइक्रोफैराड एंड पिकोफैराड. As we know, 1 microfarad is equal to 1 into 10 raised to power minus 6 farad, and 1 picofarad is equal to 1 into 10 raised to power minus 12 farad. ठीक है, नैनो भी होता है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते. इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हम फैन की बात करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू है दैट इज 3.2 into 10 raised to power minus 6. दिस इज माइक्रोफैरेड. 3.2 माइक्रोफैरेड इन फैन. फैन के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है. तो बहुत बार प्रैक्टिकल टाइम पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है. दैट इज 3.2 माइक्रोफैरेड. Clear? This is the practical units. Now, how can we define 1 farad unit? 1 farad को आप कैसे define करोगे? 1 F is equal to 1 Q upon 1 F. So, capacitance is said to be 1 farad if addition of charge is 1 coulomb to raise the potential of conductor by unit amount, or 1 volt we can say. So capacitance is said to be 1 farad if addition of charge is 1 coulomb to raise the potential of conductor by 1 volt. So there is a major difference between जब आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था एंड आप फेरेड को डिफाइन कर रहे हो. वहां पर द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज विच इज यूज्ड और विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट. तो वो आपका चार्ज कितना हो सकता है? 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है. बट यहाँ पर आप चार्ज कितना दे रहे हो बॉडी को या कंडक्टर को? 1 कूलम. सो दैट राइज इन पोटेंशियल इज 1 वोल्ट. तो अगर आपका से दिस इज कंडक्टर, आपने चार्ज इसको दिया तो चार्ज आपने कितना दिया? 1 कूलम. क्लियर? बट इसका पोटेंशियल हो गया 1.2 वोल्ट. तो आप क्या करेंगे? इस बॉडी को कट कर देंगे, इसका साइज शेप चेंज कर देंगे सो दैट इसका पोटेंशियल कितना हो? 1 वोल्ट हो. ना ज्यादा होना चाहिए 1 वोल्ट से, ना ही कम होना चाहिए. तभी आप कहोगे कि इस कंडक्टर का, इस बॉडी का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड. सो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए. कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर आप कैसे डिफाइन करेंगे एंड हाउ कैन वी डिफाइन 1 फैरेड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर लेना है, उसका कैपेसिटेंस आपको चेक करना है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक से. दिस इज आवर कंडक्टर whose radius is capital R and charge is uniformly distributed over the surface of this conductor. And we suppose that ki this whole charge is concentrated at the center of this sphere. So electric field value is radially outward at every point. अब यहाँ पे एक बच्चों का डाउट भी आता है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है वहां पर रेडियली आउटवर्ड कैसे आ रहा? बिकॉज हम फ्लैट सरफेस के लिए हम इजिली डायरेक्शन बता सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा कि जब हम इसका स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे देन दिस कर्व सरफेस आल्सो बिहेव लाइक ए फ्लैट सरफेस. अर्थ वैसे क्या है? राउंड है, लेकिन जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं वो कैसा है? फ्लैट है. तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे? रेडियली आउटवर्ड होगी. सो कंसिडर हियर a sphere
of radius capital R and charge capital Q is uniformly distributed over the surface of this conductor. If I want to check electric potential value at any point of this conductor, तो कितना होगा? तो आपका आंसर फटाफट आना चाहिए, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बिकॉज यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम होगा. जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे उतना इसके इनसाइड होगा, एंड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0. तो ये थंब रूल है, आप इसको हमेशा याद रखिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. सो राइट डाउन इलेक्ट्रिक potential at the surface of conductor at any point, किसी भी पॉइंट पे चेक करिए, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट होगी, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R. से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब आपको निकालना क्या है? कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हैं? Q अपॉन V. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Now put the value of V from equation first, and that is Q upon 4 pi epsilon naught capital R. This Q cancel out, and it's come out to be 4 pi epsilon naught capital R. So finally our capacitance of an isolated spherical conductor is 4 pi epsilon naught capital R. 4 pi epsilon naught, all values are constant here, so capacitance is directly proportional to R. So from here we can conclude that capacitance of an isolated spherical conductor is proportional to radius of a conductor. Capacitance of spherical conductor is proportional to its radius. ठीक है, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक कंडक्टर स्टोर करेगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका रेडियस क्या होगा. बट इन दिस केस एक सिंगल कंडक्टर और आप सिंगल कैपेसिटर के अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम वैल्यूज इसके कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो इतना ये इसका लिमिटेशन है कि एक सिंगल कंडक्टर के अंदर, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर आप जितना चाहे मर्जी रिक्वायर्ड चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते. सो दैट इज अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. वो हमारे बहुत काम के हैं, इसकी लिमिटेशन है तो हम इसको यहाँ पर डिस्कार्ड करते हैं. हम स्फेरिकल कंडक्टर एज ए कैपेसिटर चूज नहीं करते, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करते हैं. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसलिए जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है कैपेसिटर का उसको अच्छे से स्टडी करिए. अगर कोई डाउट है तो पूछिए. थैंक यू.